students, children, today we are going to learn about friction. So children, your 14th chapter name is friction. 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 Friction is the name of force. Then one object put in another object and objects are moved, then friction is developed. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर रखा जाता है और वो उस पर मूव करे तो इससे फ्रिक्शन डेवलप होता है. फ्रिक्शन मीन्स द रबिंग ऑफ वन सरफेस और थिंग अगेंस्ट अनदर. किसी वस्तु की सतह का दूसरी वस्तु से रगड़ना फ्रिक्शन कहलाता है. रब बोथ योर palms together. Now apply a few drops of oil on your palm and rub them again like this. Okay. Then apply few drops of oil just like this and again rub your palm. In both the conditions, what differences did you feel on rubbing your palms? In both the conditions, what differences did you feel on rubbing your palms? आपने दोनों कंडीशन में अपने पाम को रब किया, आप लोगों को क्या डिफरेंस पता चला? Heat is generated when I rub my palm without oil. On applying oil, less power is required and heat is not generated. जब मैंने अपने हाथों को विदाउट ऑयल रब किया सो मुझे ज़्यादा पावर लगा और हीट, मेरे हाथ गर्म भी हुए, हीट भी जनरेट हुई. लेकिन जब मैंने अपने पाम में कुछ ड्रॉप्स ऑयल के अप्लाई किए तो मुझे लेस पावर लगा रब करने में और मेरे हाथ जो है गर्म भी नहीं हुए. व्हाट मे बी द रीज़न? इसका क्या कारण है? चिल्ड्रन, जब मैंने विदाउट ऑयल अपने हैंड को अपने पाम को रब किया सो इसमें फ्रिक्शन हुआ. फ्रिक्शन होने से क्या हुआ? हीट जनरेट हुई. लेकिन जब हम कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डालते हैं तो फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होता है, जिससे हीट जनरेट नहीं होता है. चिल्ड्रन, व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स so friction is generated. Oil drops reduce the frictions. Oil drops reduces the friction. Friction generates heat when two surfaces rub each other. Friction generates heat. Friction heat generate करता है when two surfaces rub each other. जब two surface को एक दूसरे पर रब किया जाता है. This prevents the things from slipping and rolling. Friction की हेल्प से चीज़ें जो हैं स्लिपिंग और रोलिंग नहीं हो पाती. तो चिल्ड्रन, आपका ये जो लेसन है पूरा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है. मैं आप लोगों को ये करके दिखाऊंगी और आप लोग भी अपने घर पे ये अप्लाई कीजिएगा, करके देखिएगा. Experiment 1. As shown in the picture, keep the book in a sloping position on a plane surface and roll a marble on it. Now spread
a rug on the plain surface and roll the marble again. दो बुक रखिए और उसे स्लोप पोजीशन पे रखिए, प्लेन सरफेस पे रखना है और मार्बल्स को लुढ़का कर देखना है उसमें तो क्या होता है। चलिए मैं करके दिखाती हूँ। मैं इस मार्बल को स्मूथ सरफेस में रोल कर कर देखती हूँ क्या होता है। यह तो काफ़ी दूर तक रोल्ड हुआ है। अब इसी मार्बल को रफ सरफेस पर रोल कर कर देखते हैं क्या होता है। यह तो कुछ दूरी में ही रुक गया। सो स्टूडेंट्स, रफ सरफेस reduce friction. So children, in which condition would the marble cover more distance? हमने देखा कि जब मार्बल को स्मूथ सरफेस पर रोल किया गया तब वह लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया, और जब उसे रफ सरफेस पर रोल किया गया तो वह कुछ दूर जाकर रुक गया। On a vacant surface, the marble will cover more distance. स्मूथ सरफेस पे मार्बल ने more distance कवर किया। In which condition would the marble not go so far? In second condition, या कह सकते हैं rigged, जब सरफेस था तो मार्बल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कवर कर पाया। In second condition, the marble not go so far. Out of the two surfaces, which surface was able to produce more friction? Rigged surface is able to produce more friction. Rigged surface is able to more friction. Now students, experiment 2. This time roll the marble from different heights. अब इस टाइम क्या कीजिए, डिफरेंट हाइट्स से हमें मार्बल को रोल करना है। Observe the effect on its movement. Change the level of the slant of the book. Hold one end of the book with your hands and the other should touch the floor. Now roll the marble from the end which is high to the plain floor. Mark with a chalk the place where the marble reaches. Conduct the same experiment by changing the slope of the book each time. क्या करना है, बुक्स को अलग अलग हाइट पे रखकर मार्बल को रोल करके देखना है क्या होता है। अब चिल्ड्रन, बुक को डिफरेंट स्लोप पर हम रखकर मार्बल्स को रोल्ड कर कर देखते हैं कि क्या होता है। मार्बल कुछ दूरी पर जाकर रुक जाता है। चिल्ड्रन, अब बुक की हाइट को, मीन्स बुक के स्लोप को थोड़ा बढ़ाकर मार्बल को रोल्ड कर कर देखते हैं कि क्या होता है। मार्बल इतनी दूर निकल गया कि दिखाई नहीं दे रहा है। Experiment 3. Take a book, keep it on the floor and push it with your finger. Now keep 3, 4 or more pencils under the book in a vertical position. Now push the book
अब बुक को फ्लोर पर रखना है और बुक को पुश करना है। फिर बुक के नीचे 3 और 4 पेंसिल रखकर उसे वर्टिकली पोजीशन पे रखना और देखना और फिर उसे पुश करना है। उससे क्या होगा, चलिए देख करके देखते हैं। एक बुक को फ्लोर पे रखकर पुश कर देखते हैं क्या होता है। इसे पुश करने में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ रहा है ना। अब चिल्ड्रन उसी बुक के नीचे अंडर में हम कुछ पेंसिल्स को वर्टिकली सेट कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से। और बुक को रोल्ड कर देखते हैं तो ये इजीली रोल्ड हो रही है। फिर से देखते हैं, देखिए, है ना चिल्ड्रन। मैंने बुक को विदाउट पेंसिल भी पुश किया और उसके बॉटम में पेंसिल्स रखकर पुश की। मुझे लेस एफर्ट लगा उसे पुश करने में जब पेंसिल उसके नीचे थी। यस, लेस एफर्ट रिक्वायर्ड टू पुश द बुक। लेस एफर्ट लगा बुक को पुश करने में। What do you feel is the reason behind it? Yes, children, there is a reason behind it. The friction between floor and book is reduced by pencils. Thus, less effort is required to push the book. जब मैंने बुक के नीचे पेंसिल्स रखी तो मुझे लेस एफर्ट लगा। Experiment 4. Whenever Neelam opens the door of her house, she has to exert a lot of effort, and the door opens with a crack. Neelam's mother asked her to put oil in latches of the door. Neelam did what her mother was told. The problem solved. On opening the door, why did it produce a sound? ऐसा क्यों होता है? हो रहा था कि डोर खोलने में बहुत ताकत और साउंड हो रहा था। On opening the door, why did it produce a sound? जब दरवाजा को नीलम खोल रही थी तो वो साउंड क्यों प्रोड्यूस कर रहा था? Due to the jam of hinge of door, the friction increases and it produces a sound on opening. एक जाम लग जाता है हिंज में डोर के, जिसके कारण अब साउंड प्रोड्यूस होता है। After oiling, why could the door be opened easily without any noise? ऑयलिंग करने के बाद डोर कैसे ओपन हो जाता है? After oiling, the jam of hinge joint of door reduces and friction is also reduced. Thus, door opens easily without any noise. ऑयलिंग करने के बाद जो जॉइंट फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है
और जो जैम होता है हिंज में, जॉइंट में, वो भी खत्म हो जाता है। वाई आर द पार्ट्स ऑफ द साइकिल ऑयल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स? साइकिल के जो पार्ट्स हैं उनको रेगुलरली क्यों ऑयलिंग की जाती है उनकी? Because the parts of cycle can work without friction and noise. ताकि जो साइकिल के पार्ट्स हैं वो विदाउट फ्रिक्शन और विदाउट नॉइस के वर्क कर सके। चिल्ड्रन, think and tell, on which rolling pan can you roll a chapati easily, a smooth wooden one or a rough wooden one? चपाती किसमें इजली रोल कर पाते हैं हम? स्मूथ वुडन वन में या रफ वुडन पाटे में? ऑन विच ग्राइंडिंग स्टोन वुड यू बी एबल टू ग्राइंड स्पाइसेस एंड चटनी बेटर? चिल्ड्रन, कौन से ग्राइंडिंग स्टोन में चटनी या स्पाइसेस अच्छी तरीके से ग्राइंड हो सकते हैं? ऑन व्हाट काइंड ऑफ सरफेस कैन यू वॉक इजली? आप कौन से सरफेस पे इजली वॉक कर सकते हैं? तो चिल्ड्रन, ये सोचिए और अपनी बुक पे इसके आंसर्स लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, read the table given below and answer the questions the follow. Condition, friction, what happens? Walking on sand a lot, difficulty in walk. Stepping on the peel of banana while walking. Stepping on the peel of banana while walking. चलते समय बनाना केले के छिलके के ऊपर अगर पैर पड़ जाए तो क्या होता है? फ्रिक्शन वेरी लिटिल होता है, इसलिए स्लिप हो जाते हैं। वॉकिंग ऑन अ रोड, रोड पे चलते समय एप्रोप्रिएट फ्रिक्शन रहता है। जब हम वॉक करते हैं तो रोड में तो एप्रोप्रिएट फ्रिक्शन होता है, क्योंकि रोड जो है वो रफ होती है, इसलिए उसमें इजली वॉक कर सकते हैं हम। कैन यू थिंक ऑफ अ सरफेस विथ नो फ्रिक्शन? व्हाट विल हैपन्स देयर? क्या आप सोच सकते हैं कोई ऐसा सरफेस जहाँ फ्रिक्शन नहीं हो तो क्या होगा? ऑन अ सरफेस with no friction we cannot walk easily and there will be chance of sleeping. Children, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम स्लिप हो जाएंगे, अच्छी तरीके से वॉक नहीं कर पाएंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।